यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आज से ठीक 3 साल बाद। और ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ ऑन अ रेड लिस्ट। और ये ख़तरा इसलिए नहीं है कि दुनिया में पानी ख़त्म हो गया, बल्कि अगर देखा जाए तो ज़मीन का 71% हिस्सा पानी है, एंड दैट इज़ अ लॉट ऑफ वाटर। लेकिन मसला यह है कि इस 71% पानी में से 97% नमकीन होने की वजह से काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, और बाकी का सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 1.2% पीने के काबिल है। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, और हमें जल्द से जल्द इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, बिकॉज ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिजर्वायर्स आर डिप्लीटिंग एट अ रैपिड रेट। और अगर इस मसले का कोई जल्द से जल्द हल ना निकाला गया तो वी कुड बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन इन नियर फ्यूचर। So as an alternate to traditional water extraction methods, we, the students of Bahrain University Islamabad campus, have made a device जो कि हवा से पानी बनाता है। नहीं अच्छी चीज़ है। name is Abbas Khalil. My group members are Muzammil Hussain and Raja Saif Ali. This is our final year project, that is design and development of air cushion vehicle, which is supervised by engineer Mudassir Wahab. So basically, air cushion vehicle is also called an air hovercraft. It has ability to travel on both land and water. The reason why it can travel on both land and water is because it can float on a layer of air. In order to generate that layer of air, we need a lift motor, and for thrust we need two thrust motors. This lift motor is attached vertically of on our hovercraft board. This motor fills the air inside the cushion. When this cushion fills the air, then it floats on a layer of air. These two thrust motors are for the thrust purpose. The motor that we have using is a BLDC motor. This BLDC motor, outer part of this BLDC motor is permanent magnet, and stator part has a magnetic field coil. These coil generate electric field. Due to this electric field, our rotor part of BLDC motor is rotated. For future recommendation, we would recommend two things. One is to fit a camera on this hovercraft, and we can use it for surveillance purposes. And the second thing that we would recommend is we can turn this hovercraft into a quadcopter by using 4 motors, 2 on left side and 2 on right side. This hovercraft will then act as a quadcopter, and it will act as a regular hovercraft which travels on land and water as well. So this is the future recommendation that we would recommend for future project, for future upgradation. Tell you about the now I will tell you about the direction control of this hovercraft. The direction of this control is using the code Arduino code, in which we have used this servo library. The servo library first has the back EMF, which detects the BLDC motor, and then it starts the program. The program is developed such that when the right side of the motor will move and the left side of the motor will stop, so the hovercraft will start moving towards the left side.
and when the when the left motor starts moving and the right motor stops, the hovercraft will start moving towards the right, because the air flows in the opposite direction for the movement of our hovercraft. And in similar way, for the lift motor, we have used the electronic speed controller, which produces the PWM, which amplifies the current in the form of AC to the BLDC motor for the working. And through the transceiver, which has a range of 10 to 20 meter, 10 to 20 meter, and the remote controller we are using is of 27 megahertz. And the battery we are using is LiPo battery, which is of 12 volt and 2200 power control system. Go. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Tayyib Zaid. This is my group member Huzaifa Ahmed, Samir Abbasi. Coming to our project, this is a designing of UV speed controller. This here is the designing and this here is the observing and controlling part. This here is the microcontroller part, the gate drivers IC, hexa bridge. As I increase the potentiometer from 0 to 100, it rotates the motor in varying speeds. This here was the maximum speed attained from this source. Now, for the forward and reverse rotation, here you can see this is 3-phase BLDC motor in forward. As I increase, it comes into backward initially. Here you can see the motor's speed. हमारा जो प्रोजेक्ट है सर वो एस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस है, जो सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं एस्पेक्ट लेवल पे। तो फॉर एग्जांपल हम इधर सर्च बार में इधर टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट सेंटेंस भी हो सकता है, पूरा आर्टिकल भी हो सकता है। फिर उसके बाद इसमें ये पहले एस्पेक्ट्स निकालेगा पूरे आर्टिकल में से, फिर उस पर जो सेंटिमेंट पास किया उसको अकॉर्डिंग टू दैट देयर सेंटिमेंट वो उसको असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल ब्लू शो कर रहा है हमारे पास न्यूट्रल सेंटिमेंट, के लिए हमें GUI रिक्वायर्ड था, हमने GUI पाई पे डिज़ाइन किया, उसके लिए स्क्रीन यूज़ किया। उसके अलावा हमने रोबोट के जितने भी कंट्रोल्स हैं मोटर्स के खासकर या सेंसर्स के, वो सब हमने आर्डिनो से कंट्रोल किए, ठीक है। और पाई और आर्डिनो को अब आर्डिनो की सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, सी लैंग्वेज, एम्बेडेड सी यूज़ की है, या जो इसकी बिल्ट इन आपको अवेलेबल होती है, जो होता है कि आपने पिन मोड रखा है, ये हाई है, वही सिंपल वाली की। तो एक तो वो है, दूसरा हमने पाई यूज़ किया। ज़ाहिर है पाई से हम इनपुट पाई से ले रहे हैं, काम आर्डिनो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर इनको कम्युनिकेट तो करवाना है। हाँ। तो वो हमने UART कम्युनिकेशन के थ्रू करवाया है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हमने ये 2 पैटर्न्स बनाने थे, ये दोनों ना, एक ये फुटबॉल ग्राउंड वाला और एक चेस बोर्ड वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो डार्क वाली लाइन है, ये डार्क वाली जो पोर्शन है ना, इसका मतलब है कि ग्रास की जो हाइट है ना वो ज़्यादा है इस जगह पे, और लाइट वाली में हाइट थोड़ी सी कम है, तब ये पैटर्न थोड़ा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है ब्लेड ऊपर नीचे करना।
Berry University. This is Nabila, my group mate. This is our final year project, which is automated grass trimming robot. Basically, this robot is to the problem of manually grass cutting, or the machines which were used before were based on fuels or diesel oil. Basically, this is the hardware. We have used a solar panel to charge as a backup for battery charging. The length of the blade is actually 1 feet, and this blade is driven by a DC motor. And the motors used for the driving wheels are imported motors, and we have done the coding on PyCharm and Arduino as well. So this is the GUI screen of the window from where the user will input. The user will give inputs of the dimensions, select the pattern. The user can also control this robot using the VNC Viewer app. So it can be controlled using mobile phone as well. जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त डीसी पावर सिस्टम्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है। बिजली की मुसलसल कम पैदावार की वजह से अवाम को एक रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम दरकार है। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास एक अपना पर्सनल एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम हो। इन्हीं डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक डीसी पावर ट्रेनिंग किट तैयार की है, जिसको इस्तेमाल करके यूज़र्स प्रैक्टिकली डीसी पावर सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। My name is Mohammed Karimullah. I have worked on the boost converter for our DC training kit. Let me show you how it works. DC converters play an important role in the solar power system. They pump the input voltage of solar array for given set of conditions. DC converter, which is able to generate low DC voltage level to high DC voltage level, which is required by load. The boost converter is usually evaluated according to economic point or distortion through the PV system. And efficiency conversion does a wide range of PV power. For those who have an idea about the power system, we are essentially changing the voltage required through the knob, which in turn increases the output voltage. Boost converter is an essential part of PV system these days. अब मैं अपने डीसी ट्रेनिंग किट के एडवांटेजेस या उन पे जो ऑपरेशन या कोई सर्किट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं उन पे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारे पास, वो उस पे सारे मॉड्यूल को जो है वो स्विचिंग की गई है, उसके ज़रिए जो है वो कंट्रोल किया गया है। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है जिससे हम किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसमें कोडिंग वगैरह करके हम जो है वो कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो सारे काम कर सकते हैं। देखा जाए तो हमारे जो डीसी ट्रेनिंग किट बनाने के मकसद ये था कि हम जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस को परफॉर्म कर सकें कि जो डीसी कन्वर्टर्स का जो कॉन्सेप्ट हासिल करना चाहते हैं वो, ताकि उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे हो सकें, इन पे उनको पता चल सके कि डीसी कन्वर्टर्स करते क्या हैं, कैसे चलते हैं, और इसके अलावा इनकी आउटपुट कैसे चेंज होती है। फिर इसकी प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 45,000 के अराउंड 45,000 के करीब जो है हमारा
इस पे जो है वो प्राइस लगी है, हम कंपोनेंट्स वगैरह जो सोलर पैनल की प्लेट है, बैटरी वगैरह, इस पे खर्चा सारा है। लेकिन अगर ये हमारे पास अगर सेकंड टाइम बनाया जाए तो इससे भी कम आ सकता है, क्योंकि डैमेजेस वगैरह भी इसमें काफ़ी हुई हैं, तो हमारे पास जो है वो भी एस्टिमेट बीच में आता है, तो इसलिए हमारे पास जो खर्चा सारा जो है वो 45,000 के अराउंड मान रहा है। क्या कहते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर को हम कमांड देते हैं यूनिवर्सल जी कोड सेंड के थ्रू। यूनिवर्सल जी कोड सेंड करते हैं इसको, ये देन स्टार्ट करवाते हैं स्टेपर मोटर ड्राइवर्स को। स्टेपर मोटर्स को रन करवाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के। और जो हमारे पास ये मशीन है, ये मशीन भी कंट्रोल हो रही है ESP32 माइक्रो। ठीक है, अब रिले हमने यूज़ किया मशीन की ऑन एंड ऑफ के लिए। गुड, सही है। रुक जाओ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टेली प्रेजेंस रोबोट था, इसी तरह का रोबोट मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं आई कार्ड में दे दूंगा या वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। मैंने इसके ऊपर उनसे डिस्कशन की। जो मैंने रोबोट बनाया था उसके अंदर फीचर्स काफ़ी ज़्यादा थे, उन्होंने इससे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स कम किए। जब डिस्कशन करने में पता चला कि ये लोग उस चीज़ को इस वजह से अडॉप्ट नहीं कर पाए कि उनसे ये चीज़ जिटर्स के साथ सर्वो मोटर्स कंट्रोल हो रही थी, उसमें जिटर्स काफ़ी ज़्यादा थे, जिस वजह से इन्होंने उस चीज़ को स्किप कर दिया। और इस चीज़ का वीडियो और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसकी कंप्लीट सर्किट डायग्राम भी दी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। I am Muhammad Waleed. And I have Hafiz Tariq. We have made a prototype of a steam power plant. Basically, we have a solar concentrator, parabolic shape. The sunlight falls on the parabolic shaped concentrator and they reflects back onto a galvanized iron pipe. This is an absorber tube. It is placed at the focal point of the parabola. We inlet the water in this, the water gets heated, then it converts into steam. When it converts into steam, it gets stored in the steam storing cylinder. When the steam is pressurized, then it is passed onto a turbine and the turbine rotates its shaft and we get electrical output. Thank you so much.
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आज से ठीक 3 साल बाद। और ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ ऑन अ रेड लिस्ट। और ये ख़तरा इसलिए नहीं है कि दुनिया में पानी ख़त्म हो गया, बल्कि अगर देखा जाए तो ज़मीन का 71% हिस्सा पानी है, एंड दैट इज़ अ लॉट ऑफ वाटर। लेकिन मसला यह है कि इस 71% पानी में से 97% नमकीन होने की वजह से काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, और बाकी का सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 1.2% पीने के काबिल है। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, और हमें जल्द से जल्द इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, बिकॉज ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिजर्वायर्स आर डिप्लीटिंग एट अ रैपिड रेट। और अगर इस मसले का कोई जल्द से जल्द हल ना निकाला गया तो वी कुड बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन इन नियर फ्यूचर। So as an alternate to traditional water extraction methods, we, the students of Bahrain University Islamabad campus, have made a device जो कि हवा से पानी बनाता है। हवा से पानी बनाना इसलिए मुमकिन है क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 12,900 क्यूबिक किलोमीटर्स का पानी हर वक्त फिजा में मौजूद रहता है। So keeping all that in mind, we have taken up this challenge, and the device which we have made is known as an aquarator. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Hamid. I am Muhammad Faizan Allah. And I am Siti Hassan. The title of this final year project is an aquarator, and the supervisor of this project is Assistant Professor Syed Umaid Ali. So this is the aquarator. इस डिवाइस को आप एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर भी कह सकते हैं। सो बेसिकली एक्वारेटर काम कैसे करता है, आइए इसको समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हवा में नमी मौजूद होती है। सो बेसिकली एक्वारेटर उस हवा में मौजूद नमी को अपने इनटेक फैंस के ज़रिए से कंडेंसेशन चेम्बर के अंदर इंटर करवाता है, और जब ये नम हवा कंडेंसेशन चेम्बर के अंदर इंटर होती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हवा में पोल्यूटेंट्स और डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हो सकते हैं। सो उनसे बचने के लिए इसके ऊपर लगाया गया है एक फ़िल्टर, ताकि अंदर साफ़ हवा जाए और साफ़ पानी बने, विच यू कैन सी ओवर हेयर। इसके अलावा कंडेंसेशन चेम्बर के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रखा जाता है, ताकि जब बाहर से आने वाली हवा अंदर दाखिल हो तो उसमें मौजूद वाटर वेपर्स ड्यू पॉइंट अचीव कर लें, और जब बाहर से आने वाली नम हवा ड्यू पॉइंट अचीव कर लेती हैं तो उससे पानी के कतरे बन जाते हैं। एंड देन वी कलेक्ट ऑल दोज वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड टू इंश्योर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर, बाकी बचने वाली हवा एग्जॉस्ट फैन के जरिए से बाहर निकल जाती है। जब कंडेंसेशन चेम्बर के अंदर 1 लीटर का पानी इकट्ठा हो जाता है तो प्योरिफिकेशन चेम्बर के अंदर मौजूद वाटर पंप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, और यही वाटर पंप इस जमा हुए पानी को फिल्ट्रेशन मॉड्यूल में ले जाता है, जहां पर मौजूद है 2 स्टेज फिल्टर और 1 यूवी लैम्प, और यही पानी 2 स्टेज फिल्टर और यूवी लैम्प से होता हुआ फाइनल रिजर्वायर में जाकर स्टोर हो जाता है। अब इस फाइनल कंटेनर के अंदर कितना पानी मौजूद है, इसका स्टेटस हमें इन LED स्ट्रिप्स के जरिए से पता चलता है। And about that LED strip, we have a display which shows some basic info, और उसके अलावा ये डिस्प्ले ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का स्टेटस बताने के काम आती है। And once you have enough water collected, then you can dispense it using this faucet. This project has been made possible by using power circuitry, control systems, refrigerant and the compressor technology. इसके अलावा एक्वारेटर की टोटल वाटेज कंजम्पशन अंडर 150 वाट्स है, and it can also be powered up using 12 or 24 volts DC source. अब अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये दूर दराज देहात में भी इस्तेमाल हो सकता है, अब चाहे वहाँ पे बिजली हो या ना हो, क्योंकि हमारी ये कोशिश थी कि ये डिवाइस सोलर पैनल के थ्रू चल सके, एंड वी आर हैप्पी टू क्लेम दैट ये डिवाइस सोलर पैनल्स और बैटरी दोनों के साथ चलेगी। एक्वारेटर को आप स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मिलिट्री और इन केस इमरजेंसी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस डिवाइस की स्टैंड अलोन कैपेबिलिटी इसको काफ़ी हद तक एक पोर्टेबल डिवाइस भी बना देती हैं। अब अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर एक्वारेटर की सेलिंग प्राइस 1 लाख हो और अगर 4 मेंबर्स की फैमिली हो तो विद इन 1.5 ईयर्स वो फैमिली फ्री में पानी पी रही होगी। अगर इस डिवाइस को हम ग्रिड के ज़रिए चलाएंगे तो ये 1 घंटे में 4 रुपए की बिजली खर्च करेगा। उस 1 घंटे में और बेस्ट कंडीशंस में इसकी वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 से 400 मिलीलीटर के दरमियान में होगी। इसका मतलब ये है कि जो वाटर बॉटल आप मार्केट से 35 रुपीज़ की ख़रीदते हैं वही बॉटल आपको एक्वारेटर 5 रुपीज़ में प्रोवाइड करेगा। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि एक्वारेटर अभी तक एक प्रोटोटाइप स्टेज पर है, और वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाए जाएंगे। और हर प्रोटोटाइप की तरह इस डिवाइस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिन पर मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है, जैसे कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी के लेवल्स कम होते हैं वहाँ पर एक्वारेटर की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी हद तक सफ़र करती है।